بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں شب 9 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید آصم عری، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ ریاستی اداروں کی نجکاری کے عمل کے بارے میں بریفنگ۔ نجکاری کا عمل مقررہ اہداف کے مطابق مکمل کرنے کی اپیکس کمیٹی کی ہدایت۔ شرکا کا SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاوشوں پر اطمینان کا اظہار۔ خصوصی سہولت کونسل کی کامیابی نے ناقدین کا منہ بند کر دیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں عسکری قیادت کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب۔ کشکول توڑ دیا، تجارتی اور معاشی تعاون پر توجہ مرکوز ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل کوئی سرخ فیتہ برداشت نہیں۔ ایٹمی طاقت کی طرح وطن عزیز کو معاشی طاقت بھی بنائیں گے۔ قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ خصوصی سہولت کونسل ملکی معیشت کی لائف لائن ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبے ایک ہے۔ معاشی استحکام کے لیے قرض کی بجائے سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ حکومتی پالیسی ہے۔ معاشی اشاریہ مثبت ہو رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں مہنگائی میں کمی آئے گی۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہری کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سلامتی حکومتی ترجیح۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدارت میں اجلاس۔ داسو اجلاس سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق امور پر بریفنگ۔ خصوصی کمیٹی تشکیل۔ 15 روز میں حتمی سفارشات پیش کرنے کا حکم۔ چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی سے متعلق جامع پلان طلب۔ خیبر پختونخوا حکومت کا بجٹ عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ صوبائی حکومت سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی بجائے عوامی مسائل پر توجہ دے۔ 9 مئی کے واقعات ملک کے خلاف سازش تھی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا صوابی میں خطاب۔ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے برعکس اسرائیل کے رفح پر حملے جاری۔ صہیونی فوج کی غزہ، رفح، دیر البلح، جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر بمباری۔ مزید 40 فلسطینی شہید۔ رفح کراسنگ کی وجہ سے امداد کی بندش۔ علاقے میں قحط کی صورتحال۔ پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے حکم کا خیر مقدم۔ فیصلے پر عمل درآمد اور اسرائیلی کارروائی فوری روکنے کا مطالبہ۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کے ساتھ اسرائیل کو جرائم کا جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، ترکیہ اور اسپین سمیت متعدد ملکوں کا عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ عالمی عدالت کے فیصلے اقوام متحدہ کے منشور اور قوانین کے مطابق تمام فریقوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اسرائیل فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ انسانی امداد کی بحالی کے لیے رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پارلیمانی انتخابات کا ڈرامہ۔ کشمیریوں کی طرف سے مکمل لا تعلقی کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز۔ آزادی سے بڑھ کر کشمیریوں کو کچھ قبول نہیں، کشمیری رہنما۔ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام کشمیر بنے گا پاکستان ریلی۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کی قیادت میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پاکستان سے محبت کے فلک شگاف نعرے۔ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتی، سردار عتیق احمد خان۔
यूक्रेन की कानूनी हुकूमत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। बाज़ मग़रबी मुल्कों ने यूक्रेन को इस अमल से बाज रखा। जौहरी मशक़ों का मकसद कशीदगी नहीं, जंगी सलाहियतों में इजाफा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैकबाबाद 49, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सखर, सिब्बी और तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, बहावलपुर और स्कंद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। Up and over, that is a cracking shot, it really is. Slices to back the point, simple catch. Has he got enough of it to get it over the field and now he's straight into his hands? बर्मिंघम में दूसरा T20 मैच इंग्लैंड का पाकिस्तान को 184 रन का हदफ। जोस बटलर की 84 रन की इनिंग्स, शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। पाकिस्तान के जवाब में 4 विकेटों पर 81 रन। कौमी टीम की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Yeah, the bat came out of it. और नेशंस हॉकी कप की तैयारी के लिए कौमी हॉकी टीम नीदरलैंड्स पहुंच गई। क्लब टीमों के साथ प्रैक्टिस में शेड्यूल। नेशंस कप का आगाज 31 मई से पोलैंड में होगा। पाकिस्तान पहला मैच 31 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे में तफसीली खबरों का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरदार, अभी तक 2023 का टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 2024 नाफिज कर दिया गया है और पहले मरहले में नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम फौरी तौर पर ब्लॉक करने के लिए मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फहरिस्त जारी कर दी गई है। अगर आप भी नॉन फाइलर्स के जुमरे में आते हैं तो अपना गोशवारा फौरी जमा करवाएं, अपनी सिम ब्लॉक होने से बचाएं, कारोबारी नुकसान से बचाएं। FBR। वेलकम बैक। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कशकोल तोड़ दिया, तिजारती और माशी ताउन पर तवज्जो मरकूज है। गैर मुल्की सरमायाकारी के राह में कोई सुर्खफीता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना है। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, वज़राए आला और मुतल्लिका आला हुकाम शरीक हुए। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दरकार अफरादी क़ुव्वत और पेशावराना सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम इस मुल्क को एटमी मुल्क बना सकते हैं तो हमारे लिए मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना मुश्किल नहीं। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान, उसकी पैदावार को दुगना तिगना करना क्या मुश्किल काम है। इंडस्ट्री को प्रमोट करना क्या मुश्किल है। एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल है। और कौम के लिए जो खजाना अल्लाह ने हमें दिया है उसका कौम को अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह रेकोटेक का हमने अचीव किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम पर वफाक और तमाम सूबे यकसुई रखते हैं, जबकि बैरूनी सरमायाकारों को भी इत्मीनान हासिल है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों के लिए हमें ग्राउंड वर्क तैयार करना होगा। UAE ने 10 अरब डॉलर का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया है। इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है वो तैयार है। अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर दिन रात भरपूर मेहनत करें और पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आज अमल करने का वक्त आया है। अब हमें
मिल कर ये काम करना है शबाना रोज़, वो वक्त दूर नहीं जब वी विल बी एबल टू कॉम्पनसेट लॉसेस ऑफ आवर पास्ट इंशाल्लाह इन डेज एंड वीक्स। गुर्बत बेरोजगारी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल हो। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के अजलास में मुख्तलिफ इक़दाम और मनसूबों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ, वफाकी काबीना के अरकान, वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम अजलास में शरीक हुए। मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ मनसूबों और पॉलिसी इक़दाम पर जाम पेशरफ्त दी गई। एपेक्स कमेटी ने मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने के लिए सहूलत काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दी गई सहूलतों को सराहा। इजलास को दोस्त मुल्कों के साथ इक़्तिसादी ताउन के इक़दाम के बारे में भी ब्रीफ किया गया। शुरका को रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। एपेक्स कमेटी ने निजकारी का अमल मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की। कमेटी ने पायदार पॉलिसी इक़दाम के जरिए सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी खुशहाली और अवाम की समाजी इक़्तिसादी बहबूद के लिए हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी और निजकारी अमल मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए SIFC और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा। शुरका ने SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काविशों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि खुसूसी सहूलत कौंसिल मुल्की मईशत की लाइफ लाइन है। माशी इस्तेहकाम के लिए कर्ज की बजाय सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा हुकूमती पॉलिसी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए वफाक और सूबे एक हैं। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, बड़ी खुश असलूबी से हुई और जो खुली डिस्कशन हुई इस मुल्क की मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के हवाले से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। वज़ीर आज़म का खिताब आप सुन चुके हैं, अभी प्रेस रिलीज भी जो है वो तफसीली आ जाएगी। मगर खुशाइन बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं और SIFC के फोरम के जरिए वो सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वफाक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको फरोग दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो मैं तमाम सूबाई वज़राए आला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ना सिर्फ शिरकत थी बल्कि उनकी बड़ी कीमती इनपुट भी आई इस मीटिंग के अंदर और उनकी इनपुट से और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये फोरम आगे बढ़ेगा। UAE की जो इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने एलोकेट किया है, मुख्तस किया है $10 अरब, उसकी बात हुई और प्राइम मिनिस्टर ने डेस्क का ऐलान किया है कि SIFC के अंदर एक चाइना डेस्क बनेगा, एक UAE डेस्क बनेगा, एक सऊदी डेस्क बनेगा, एक कतर डेस्क बनेगा, एक यूरोपियन यूनियन डेस्क बनेगा और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेस्क बनेगा। ये 6 डेस्क इनका बाकायदा तौर पे वजीर आजम ने ऐलान किया है। कारोबारी शख्सियात और मुश्तमिल राइजिंग पाकिस्तान ग्रुप के वफ्द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नुमाइंदों से मुलाकात की। SIFC की एपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर जहांजीब खान ने शुरका को सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम के बारे में ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि अपने क़याम के 1 साल से कम अरसे में काउंसिल ने हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर बहुत काम किया है, जिसके मुल्की मईशत पर बराह रास्त मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वफ़द ने SIFC के इक़दाम को सराहते हुए इस यकीन का इजहार किया कि इनकी बदौलत माशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल होगी। राइजिंग पाकिस्तान ग्रुप नौजवान कायदीन पर मुश्तमिल है, जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, खुराक, फाइनेंस, तालीम और सेहत के शोबों से है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि माशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। कौमी मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुल्तान से अरकान असम्बली और अमायदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुल्तान में तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करेंगे। कायम मकाम सदर ने कहा कि जनूबी पंजाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़े पैमाने पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन के शोबों की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की फराहमी और महंगाई में कमी लाना हुकूमत की तरजीह है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान हुकूमत के संजीदा इक़दाम की बदौलत बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वफाकी हुकूमत की काविशें काबिल सताइश है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अज़हर है। वज़ीर आला ने कहा कि रोटी समेत खाने पीने की दूसरी अशिया की कीमतों में मज़ीद कमी होगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में दासो चल्ला सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीन समेत गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी अहम हुकूमती तरजीह है। दासो चिल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतालिक कमेटी 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरे लगाना नहीं बल्कि ऐसा निज़ाम कायम करना है जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इससे इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकेगी। इस्लामाबाद पुलिस इस सिलसिले में हर किस्म की मावनत फराहम करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि वापडा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर जामे प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेश करदा बजट अवाम के मैंडेट की तौहीन है। सूबाई हुकूमत सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। तफसील जानते हैं अदनान शाह से। सवाबी में तहसील बारचोटा लाहौर की नौ मुंतखब कबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। बेंच और बार की तौकीर हमारी पार्टी की तरजीह है। इस मौका पर उन्होंने तहसील बारचोटा लाहौर के लिए 15 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया। एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं कि वफाकी बजट अभी पास ही नहीं हुआ, आया ही नहीं। ये पता नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, इसमें आपके कितने बनते हैं। और इस तरह मफरूज़ों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों को मैंडेट मिला है वो सूबे के साथ मजाक कर रहे हैं। बदकिस्मती से जिस तरह बिजली के बिलों को जलाया गया, यूटिलिटीज़ के दूसरे बिलों को जलाया गया धरनों में, और इस तरह बातें दोबारा करना, ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप आए बैठ जाए। अगर सूबे के अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो किस तरह आप चलेंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि मुल्क से महंगाई दूर करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क दुरुस्त ट्रैक पर चल पड़ा है। चाहते हैं कि अवाम की जिंदगियों में तब्दीली आ जाए। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पेशावर के इलाके कोहाट रोड पर मुश्तइल हुजूम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MPA फजल इलाही की क़यादत में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक कुछ शरपसंद अफराद ने ज़बरदस्ती दाखिल होकर ग्रिड स्टेशन के तकनीकी बुनियाद पर बंद 9 फीडर चला दिए। इन फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस लॉसेज 80% से ज़ायद हैं। पेस्को की जानिब से इन फीडर्स पर लॉसेज कम करने के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज़ कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 76,000 की नफसियाती हद को अबूर किया और स्टॉक मार्केट के तिजारती हजम में खातिर ख़्वाह इजाफा हुआ। तफसील अरीबा ज़ीशान से जानिए। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी रहा और हुकूमत की मज़बूत माशी पॉलिसियों पर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सरमायाकार मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात के कामयाब दौरे और UAE का मुख्तलिफ शोबों में $10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का मज़बूत असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहा है। मार्केट तजियाकारों का कहना है कि उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। मार्केट का डायरेक्शन जो है काफ़ी मुस्बत हो चुका है। पूरा हफ्ता मार्केट के अंदर मोरलेस जो है वो तेज़ी का रुख रहा और आई थिंक कि इसकी वजह यही है कि मार्केट के अंदर फॉरेन सरमायाकार जो है काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। $2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान मार्केट के अंदर सरमायाकारी आ चुकी है और आई थिंक कि इसकी आने की जो क्लोज हुआ है उसमें स्पेशली UAE का कमिटमेंट $10 बिलियन जो इससे पहले भी जो है वो IMF को किया गया था। अब इस पर जो है स्टेट लेवल पर जो है कमिटमेंट हुआ है जिसमें रुपी स्टेबिलिटी भी दिखी गई और मार्केट के अंदर इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी ज्यादा मुस्बत हो चुके हैं। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में 1147 पॉइंट्स का इजाफा हुआ जबकि पूरे हफ्ते के दौरान 2 अरब से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर प्रॉफिट टेकिंग भी हुई और सरमायाकारों ने ऑटोमोबाइल, केमिकल, सीमेंट और दीगर शोबों में सरमायाकारी की। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान हज मिशन ने आज़मीन हज की खिदमत के लिए तैनात मुआवनीन की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक मजबूत निज़ाम नाफिज किया है। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं रिजवान आरिफ। जी, इस वक्त मैं मेन कंट्रोल ऑफिस मक्का में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से जो है ये मेन कंट्रोल ऑफिस कायम किया गया है।
پاکستان حج مشن نے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے معاونین کا NTS کے ذریعے انتخاب کیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں تقریباً 550 معاونین حجاج کی خدمت کے لیے متعین ہیں۔ ہم نے اس پہ انشور کیا ہے کہ حجاج کی کوئی نماز باجماعت مس نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے تمام بلڈنگ کے جہاں پہ ممکن ہے بلڈنگ کے ساتھ ہی بس سٹاپ بنایا ہے۔ حج آپریشن 2024 کی بغیر کسی رکاوٹ سے تکمیل میں معاونین کا کردار کلیدی ہے۔ حاجی صاحب کو اگر کوئی بھی شکایت ہو تو وہ امیڈیٹلی اپنے موبائل فون سے یا بلڈنگ ڈیوٹی افسر کے پاس یا جہاں پہ بھی اس کی ایکسیس ہو وہ فوراً کر کے ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں۔ 2 وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتہ اس میں شامل ہے۔ ہوٹل کے جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم اس کو بھی ریزولو کرتے ہیں۔ یہاں پہ کسی کے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کھانے کا اور کمرے کا صفائی کا، ہم پورا کوآپریٹ کر کے ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سرکاری عازمین کرام کے لیے 141 عمارتیں کرائے پر لی گئی ہیں، جنہیں 9 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان تمام سیکٹرز میں معاونین موجود ہیں جو عازمین حج کی شکایت کا فوری ازالہ کر رہے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مکہ مکرمہ۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ عالمی عدالت انصاف کے دوبارہ فیصلے کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فورسز غزہ، رفح، دیر البلح، جبالیہ اور نصیرات کیمپوں پر مسلسل بمباری کر رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج رفح کے گنجان آباد مغربی ضلع کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 46 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی مظالم میں اب تک 35,903 فلسطینی شہید اور 80,420 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قابض فوج نے غزہ شہر میں بھی رہائشی علاقے پر حملے کیے جس میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ ایک المیہ ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ اب اس ڈراؤ کے خواب کا ختم کرنا چاہیے۔ مصر نے رفح کے زمینی راستے پر اسرائیلی افواج کے قبضے کے بعد کریم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے اقوام متحدہ کی امداد کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے کیونکہ جنگ زدہ غزہ میں بھوک پھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئرلینڈ حکومت کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کی جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں انہوں نے آئرلینڈ کی حکومت کو اس فیصلے کو سراہا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آئرلینڈ کا فیصلہ اسرائیلی ظلم و بربریت کے شکار فلسطینیوں کے لیے امید کا پیغام اور یکجہتی کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی نصب العین کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل رفح میں فوجی کارروائی روکے اور غزہ میں بلا تعطل انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی رسائی کو یقینی بنانے کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری اسرائیل کی وحشیانہ مہم روکنے، شہریوں کے تحفظ، فلسطینیوں پر مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے ساتھ ایک آزاد، خود مختار اور پائیدار ریاست کے لیے حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی فوری روکنے کی عالمی عدالت انصاف کے حکم کا خیر مقدم کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات اور وحشیانہ کارروائی ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انسانی امداد کے بلا روک ٹوک فراہمی، فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کے ساتھ اسرائیل کو جرائم کا جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں دائر درخواست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف اور سرحدیں 1967 سے پہلے کے مطابق ہوں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فریقین بین الاقوامی عدالت انصاف کے حکم پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے اقوام متحدہ کے منشور اور عدالتی قانون کے مطابق فریقین پر لاگو ہوتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوچارج نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ سیکریٹری جنرل نے ICJ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری جنرل عدالت کی طرف سے حکم امتناعی اقدامات سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ غزہ کے لوگوں کو مزید انسانی امداد پہنچانے کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔
यूरोपी यूनियन के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया है। एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ICJ के अहकामात फरीकैन पर पाबंद हैं और इन्हें मुकम्मल और मौसर तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। जनूबी अफ्रीका ने भी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले को सराहते हुए मुतालबा किया है कि इसराइल गजा के जनूबी शहर रफा पर अपना फौजी ऑपरेशन बंद करे। महकमा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के डायरेक्टर ने कहा कि आला अदालत का हुक्म बहुत वाज़ेह है, जिसमें इसराइल को फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया गया है। तुर्की ने भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत के तमाम फैसलों पर जल्द अमल दरामद करे। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रफ़ा सरहदी चौकी को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद के लिए खोलने के फैसले पर अमल किया जाए ताकि निहत्ते फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी शुरू की जा सके। हस्पानवी हुकूमत ने मुतालबा किया है कि इसराइल गजा और रफाह पर फौरी तौर पर बमबारी और ज़मीनी हमले बंद करके अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत के हुक्म की तामील करे। वज़ीर ख़ारिजा जोस मैनुअल अल्बारीस ने एक्स पर बयान में लिखा कि ICJ के फैसले के मुताबिक इसराइल के लिए ज़रूरी है कि वह रफाह में अपना फ़ौजी ऑपरेशन और हमले बंद करे, जंगबंदी, तशद्दुद का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद के लिए गजा तक रसाई दी जाए ताकि लोगों के मसाइब कम हों। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इंसानी इमदाद के अमले और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली है। सलामती कौंसिल के 14 अरकान ने स्विट्ज़रलैंड की करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। स्विट्ज़रलैंड की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वो इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों बशमूल कौमी और मकामी तौर पर मुलाज़मत करने वालों एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करें। अक़वाम मुत्तहिदा में स्लोवेनिया की नायब सफ़ीर ने कहा कि 2003 से अब तक कम अज़ कम 2491 इमदादी कारकुन हलाक और 4500 से ज़्यादा ज़ख्मी या अगवा हो चुके हैं। गजा में हलाक होने वाले ज़्यादातर इमदादी कारकुन उनरवा के लिए काम करते थे। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने कौंसिल को बताया कि गजा में 250 से ज़्यादा इंसानी हकूक़ के कारकुनों की हलाकत नाकाबिल कबूल है। ये आदाद शुमार अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में किसी भी दूसरे तनाज़े से ज़्यादा हैं। बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत खित्ते की मौजूदा संगीन सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने के लिए इलाके में पार्लिमानी इंतखाबात का ड्रामा रचा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत अपने फौजी कब्जे को बरकरार रखने और इलाके में अपने गैर कानूनी इक़दाम को जवाब बख्शने के लिए ढोंग इंतखाबात का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा इलाके में पाबंदियों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी कारकुनों और पोलिंग एजेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला इस्लामाबाद के इलाके बजाड़ा में पार्टी रहनुमा और कारकुनों के हमराह एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे को भी बंद कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात में धांधली हो रही है और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस समेत तमाम सीनियर अफसरान मुलव्वस हैं। भारतीय फौजियों ने जिला डोडा के इलाके भद्रवा में घरों पर छापों के दौरान मोहम्मद सलीम और मोहम्मद याकूब नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद 3 बेगुनाह कश्मीरियों की नज़रबंदी को कलअदम करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। जेल में बंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया बशार हुसैन मलिक ने कहा है कि भारत तिहाड़ जेल में यासीन मलिक से उनकी बेटी को मुलाकात की इजाजत दे। अपने वीडियो पैगाम में मिशाल हुसैन मलिक ने कहा कि भारतीय अदालतों ने कश्मीरियों की सबसे ताकतवर आवाज़ खामोश करने के लिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक 2 साल पहले हिंदुस्तान की कैंगरू कोर्ट्स ने मेरे शौहर अजीम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को यकतरफा तौर पे उम्र कैद सुनाई थी और उसके ठीक 1 साल के बाद हिंदुस्तान की NIA ने, जो उनकी हुकूमत की सरकार की है, उसने उस उम्र कैद को फांसी में तब्दील करने की दरखास्त दी थी इन्हीं कोर्ट्स के अंदर। आज एक और साल गुजर गया है। मैं दुनिया से भी अपील करती हूँ, खास तौर पे वर्ल्ड बॉडीज और यूनाइटेड नेशन से, कि और कितना जो है तड़पाया जाएगा और कितने हकूक सलब किए जाएंगे कश्मीरियों के। जेनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर, जिसका सिग्नेटरी है हिंदुस्तान, आज तक उनके ऊपर कोई जो है एप्लीकेशन नहीं हुई।
میں آج دنیا سے بھی اپیل کرتی ہوں اور ہندوستان کی سرکار کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا ایک فیملی کو ملنے کے لیے. 10 سال ہو گئے ہم بچھڑے ہوئے, ہم ترس رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی ایک نگاہ کے لیے, ان کی آواز سننے کے لیے. میری بیٹی 12 سال کی ہوگی ہے, 10 سال پہلے جب وہ میری گود میں تھی تب اس نے اپنے والد کی جھلک دیکھی تھی. ہم دنیا سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جائے, خاص طور پہ یونائیٹڈ نیشنز ہندوستان سے گارنٹی لے, ریٹن گارنٹی ہمیں چاہیے کہ ہمیں سیف انٹری اور سیف ایگزٹ دیا جائے گا اور ان سے ملاقات کی جو ہے ہمیں اجازت دی جائے گی, اس کی گارنٹی دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سرکار کو بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ملنے دیا جائے, ہمیں ایکسیس دی جائے. یاسین صاحب ہمیں نہیں پتا وہ کس حال کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی بھی سرکار کو جو ہے حکومت وقت کو بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ میک شور کریں کہ دنیا بھر کے اندر بھی کیمپین کریں, ہندوستان کی سرکار کو بھی کہیں کہ ہماری فیملی کو جو ہے اجازت دی جائے کہ ہم ملیں. آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام ضلع باغ میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی, جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کی تجدید کا عہد کیا. رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد. ریلی کا آغاز آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے نیلا بٹ سے ہوا. ریلی میں سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل قافلے میں ہزاروں افراد شامل تھے. ریلی کی قیادت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کی. ریلی کے شرکاء نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے پرچم تھام رکھے تھے اور وہ پاکستان اور الحاق پاکستان کے حق میں بھرپور نعرے بازی کرتے رہے. کوہالہ کے مقام پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے اور اس دوران فضائیں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی. ہم ہندوستان کے مقابلے میں پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی دوسرے نظریے کے مقابلے میں کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کشمیری پاکستان سے محبت تاکہ پاکستان اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ, اور پاکستان اور کشمیر ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس موقع پر ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران سردار عتیق احمد خان اور دیگر مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام پاکستانی تھے, ہمیشہ پاکستانی رہیں گے اور پاکستان کی ساکھ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. مقررین نے کہا کہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ بھارتی فوج قابض جبکہ پاکستان کی فوج محافظ فوج ہے. کشمیر بنے گا پاکستان ریلی مجموعی طور پر 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد دارالحکومت مظفر آباد میں اختتام پذیر ہو گئی. عدیل احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مظفر آباد, آزاد کشمیر. افغان طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے افغانستان مختلف انسانی بحرانوں کا شکار ہے. ایک طرف خطرے کی وبا کی شرح میں سنگین حد تک اضافہ ہو چکا ہے تو دوسری طرف متاثرین سیلاب تک ریلیف نہ پہنچنے کی وجہ سے افغانستان کے صوبے غور کے سیلاب متاثرین برہم ہیں. رواں سال کے پہلے 4 مہینوں میں ملک میں خطرے کے 3000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اور اس وبا کے کیسز میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ ماہ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ مارچ میں خطرے کے کیسز کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی تھی جبکہ 34 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. دوسری طرف حالیہ سیلاب نے رہائشیوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے طالبان حکومت کی جانب سے امداد میں تاخیر ہے. پیپلز کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ ہم قومی اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ امدادی سامان کی جلد فراہمی کو یقینی بنایا جائے ورنہ صوبہ غور بہت بڑے انسانی بحران کا شکار ہو جائے گا. پاکستان اور انگلینڈ کے مابین دوسرے T20 میچ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. انگلینڈ نے پاکستان کو دوسرے T20 میچ میں 184 رنز کا ہدف دیا ہے. جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. برمنگھم میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز بنائے. اوپنر جوز بٹلر نے نصف سنچری سکور کی اور 84 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ان کے اننگز میں 3 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے. ول جیک نے 37 اور جونی بیئرسٹو نے 21 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی. اماد وسیم اور حارث رؤف کے حصے میں 2-2 وکٹیں. اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس میچ میں پاکستان نے اب تک 16 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 140 رنز بنائے. ناظرین, کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی گشت کے لیے بحر ہند میں بحری جنگی جہاز
PNS असलत को तैनात कर दिया है। ISPR के मुताबिक PNS असलत मखसूस हेलीकॉप्टर के साथ पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। PNS असलत की तैनाती का मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तैनाती के दौरान पाक बहरिया का जहाज़ अपने ऑपरेशंस के अलावा दोस्त मुल्कों के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और बहरी सफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा भी करेगा। ये जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस है जो कसीरुल जहती खतरात से निमटने और वसी पैमाने पर मैरी टाइम ऑपरेशंस करने की सलाहियत रखता है। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज बिश्केक से एक और फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पहुंची। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं ज़मीर अब्बास। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तानी तलबा का कराची हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। उन्होंने तलबा को फूलों के हार पहनाए और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। बाद में PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बिश्केक में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा को खैर आफियत से वतन वापस ले आएं। पूरे पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो पंजाब से या सिंध से, हमारे लिए सबके बच्चे सांझे हैं, सबके माँ बाप परेशान हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिरी बच्चे तक, जब तक उनके वालिदैन चाहते हैं, जो भी आना चाहता है पाकिस्तान, उसके लिए हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खास हिदायत पर सिंध हुकूमत ने ये दूसरी फ्लाइट चार्टर कराई है जिसमें पाकिस्तानी तलबा को लाया गया है। और ये बताता चलूँ, ये स्टूडेंट सिर्फ कराची के नहीं थे, पाकिस्तान भर के स्टूडेंट थे जो कि इस फ्लाइट में आए। मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी तो ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जितनी भी ज़रूरत पड़ी हम फ़्लाइट्स चार्टर्ड कराएंगे और अपने मुल्क के मासूम बच्चों को इस मुल्क में लेकर आएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायत दी थी CM सिंध मुराद अली शाह साहब को कि जो भी बच्चे हैं जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं उनको फौरी तौर पर अरेंज किया जाए चार्टर्ड फ़्लाइट्स का और उन बच्चों को वापस बुलाया जाए। इस मौके पर पाकिस्तानी तलबा वतन पहुंचने के बाद बहुत खुश नजर आए। इनका कहना था कि बिश्केक में हालात कशीदा होने के बाद हमारी महफूज वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारा हदफ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करना है। स्कूलों में स्पोर्ट्स की बहाली से मुतालिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पोर्ट्स को बैनुल-अक़वामी मयार तक ले जाने के लिए बुनियादी सतह पर खेलों को तरक्की देना होगी। मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता ने सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर स्कूल स्पोर्ट्स डेटा मुरतब करने की हिदायत की। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि खुसूसी तलबा और तालिबात हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। उनकी बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पिंडी के ज़िला अटक में स्पेशल एजुकेशन स्कूल के दौरे के मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। गवर्नर पंजाब को स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाक ऐवान नहाई सनत और तिजारत पाकिस्तान के 16 रुकनी वफ़द ने सदर आतिफ इकराम की सरबराही में मुलाकात की। मुलाकात में माशी और तिजारती सरगर्मियों और सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि सनती और इक़्तिसादी तरक्की में सनतकारों और ताजरों का कलीदी किरदार है। मौजूदा हुकूमत सनती तरक्की के लिए हर मुमकिन ताआवुन जारी रखेगी। FPCCI के सदर ने तवक्को ज़ाहिर की कि हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करेगी। दोस्त मुल्क तुर्किया के ताआवुन से कराची में कायम इदारे दारुस्सूकून में खुसूसी बच्चों और मासूरों के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स अतिया की गईं। तफसील आयशा आफरीन से जानिए। दोस्त मुल्क तुर्किया की फलाही तंजीम टिका की जानिब से दारुस्सूकून कराची में खुसूसी और माजूर अफराद के लिए 20 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स दी गईं। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि तुर्किया और पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है, जो पायदार पाक तुर्क दोस्ती की अलामत है। तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमद पाचा जी ने कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। TIKA, Turkish Cooperation and Coordination Agency, taking very important role in this regard, and it has been conducting many projects since it has been in Pakistan.
दारुस्सुकून के CEO सेवियो प्रया ने माजूरों के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स देने पर तुर्क सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोटराइज व्हील चेयर नहीं होती तो ये अपने कमरों में बंद रहते, ठीक है, नॉर्मल व्हील चेयर होती तो ये इससे कुछ थोड़ी सी एम्पावरमेंट होगी इनको, ये अभी खुद से घूम सकते हैं। तकरीब में मौजूद तुर्क कौंसल जनरल जमाल सांगू का कहना था कि पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हो रहे हैं। Nowadays we have excellent relations in the field, in everything. We have to now work very hard to improve the trade relation as well. दोस्त मुल्क तुर्किया की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स के अतिया करने से इन खुसूसी अफराद की जिंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि कैडेट कॉलेज गर्दू का शुमार मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में होता है। कैडेट कॉलेज गर्दू की 19वीं पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि कॉलेज के ग्रांट को 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जबकि कॉलेज के लिए सोलर सिस्टम, पीने के साफ पानी की फराहमी और जदीद कंप्यूटर लैब के क़याम के लिए भी काम जारी है। वज़ीर आला ने इस मौके पर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद की मकामी गैलरी में मारूफ आर्टिस्ट अहमद फारूक के बनाए गए फन पारों की नुमाइश हुई, जिसमें लोग गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। आर्ट और फनून लतीफ़ा ऐसे शोबे हैं जिनके जरिए कोई भी आर्टिस्ट न सिर्फ अपने अंदर की कैफियत बल्कि माशरती रवैयों, नाहमवारियों और माशरे में पाए जाने वाले तजादात का इजहार अपने फन से करता है। इस्लामाबाद की मकामी आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट अहमद फारूक की बनाए गए फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। अहमद फारूक ने अपने ब्रश और रंगों के जरिए ऐसे शानदार और अछूते अंदाज में फन पारे तख्लीक किए कि देखने वाले मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। मैंने जो पेंटिंग्स बनाई हैं इनमें मिक्स मीडियम इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक्रिलिक्स मोस्टली है, और उसके अंदर मैंने डिफरेंट टेक्सचर्स इस्तेमाल किए हैं, इंक पेन्स इस्तेमाल किए हैं, सो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स इस्तेमाल किए हुए हैं इसके अंदर। बड़ा अनयूजुअल काम है इनका, मुनफरिद है और इट स्टैंड्स आउट, वेरी वाइब्रेंट, बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं। अहमद फारूक ने रिवायती डगर से हटकर एक फर्द और माशरे के दरमियान ताल्लुक, माशरती इंसाफियों और अपने अंदर के एहसासात को रंगों की खूबसूरत इम्तिजाज से उजागर किया और ये नुमाइश आइंदा माह की 6 तारीख तक जारी रहेगी, जिसे देखने के लिए आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर की निजी आर्ट गैलरी में मुख्तलिफ फन पारों की नुमाइश जारी है। मुलाहिजा कीजिए वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट। दीवारों दर के उन्वान से जारी इस खूबसूरत नुमाइश में लाहौर की रवायती खूबसूरती, फनो सकाफत और तारीखी दरवाजों की अक्कासी की गई है। मुख्तलिफ मुसव्वरों ने अपने फन पारों के जरिए लाहौर से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। अंदरून शहर की रौनकें, कदीम दरो दीवार और जिंदा दिली को आर्ट की मुख्तलिफ असनाफ से इस तरह पेश किया गया है कि देखने वाला दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बहुत सारे म्यूरल्स बनाए हैं क्ले में, दिस इज वन ऑफ देम। ये एक तरह से एक शहर को, ख्याली शहर को डिपिक्ट कर रहा है। सोसाइटी में जो है उन सब चीज़ों को ये जो एकदम कलम बंद करते हैं अपने आर्ट वर्क में, अपने लैम्प्स में, अपनी पेंटिंग्स में, अपने फर्नीचर में, तो वो मुझे ऑलवेज आई इंस्पायर्ड ऑल दीज थिंग्स। नुमाइश में 50 म्यूरल्स के अलावा खताती के भी फन पारे रखे गए हैं जो हाजरीन की तवज्जो का मरकज रहे। जितनी इस्लामिक कैलीग्राफी की है इसमें हमारा जो मेन गोल्ड लीफिंग है, गोल्ड लीफिंग और कुफिक को हमने जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसको फॉलो की है। बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन है, काफ़ी अच्छा काम है यहाँ पे, बहुत डिटेल काम है और काफ़ी नैरेटिव बेस्ड है। फन के दिलदादा अफराद ने नुमाइश देखी और इसे कदीम लाहौर की खूबसूरती को नई नस्ल तक पहुँचाने का अहम जरिया करार दिया। आर्टिस्ट ने अपनी खूबसूरत महारत के जरिए अपने फन को उजागर करने की कोशिश की है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाजरीन, मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। लाहौर से मौज़िमुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं।
لاہور اور اس کے گرد و نواح میں گرمی کی شدت برقرار ہے. شدید گرمی، تیز دھوپ اور تپش کے باعث ہر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے. شہر میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا تناسب 18% رہا. ہیٹ ویو کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی کے باعث گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں تاکہ آنے والے سالوں میں گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو سکے. ایک ہفتہ پہلے سے لے کے اب تک بہت زیادہ گرمی پڑی. انشاءاللہ اگلے سال گرمی کی ہیٹ کم سے کم ہو. اپنے آس پاس جتنا ہو سکے گھروں میں یا چھت پہ پودے لگائیں گے تو بچوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے. طبی ماہرین کے مطابق شہریوں کو چاہیے کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں, ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں, باہر جاتے ہوئے اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں اور غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں. دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا یہ سلسلہ 27 تاریخ تک جاری رہے گا اور درجہ حرارت مزید اوپر جا سکتا ہے. معظم الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. ناظرین, آج ریکارڈ کیا گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے, جس کی تفصیل کچھ ایسے رہی. موئنجو داڑو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دادو میں بھی 50, جیکب آباد 49, جبکہ سبی اور لاڑکانہ میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے. ذکر کریں گے اسلام آباد کا, جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. لاہور میں 43, کراچی 37, پشاور بھی 40, جبکہ کوئٹہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین, موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن یوکرین کی قانونی حکومت سے ہی بات ہوگی. بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا. بعض مغربی ملکوں نے یوکرین کو اس عمل سے باز رکھا. صدر پوتن نے کہا کہ روس کی جوہری مشقوں کا مقصد کشیدگی میں اضافہ نہیں, اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بیلاروس کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں. بیلاروس کی سرزمین پر مشترکہ دستوں, دفاعی نظام اور ہر بار جوہری ہتھیاروں کو تعینات کیا گیا ہے. مذاکرات میں موجودہ زمینی حقائق اور گزشتہ کوششوں کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے خارکیف کے محاذ پر اہم علاقوں کا دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا ہے, جبکہ روس کا کہنا ہے کہ مشرقی محاذ پر دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل یوکرینی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خارکیف کا دورہ کیا اور فوجیوں سے ملاقات کی. خارکیف یوکرین کا دوسرا بڑا شہر ہے جو روسی سرحد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جنوبی بحر الکاہل کے ملک پاپوا نیو گنی میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں اموات کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے. مٹی کا تودہ صوبہ اینگا کے گاؤں میں رات کے وقت گرا. عینی شاہدین نے بتایا کہ مٹی کے تودوں تلے اب بھی درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں, جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. حکام کے مطابق علاقے میں 1200 سے زائد مکانات مٹی تلے دب گئے ہیں. بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کے چھٹے مرحلے میں 58 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے. اس اہم مرحلے میں 889 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. چھٹے مرحلے میں 8 ریاستوں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. الیکشن کے دوران مغربی بنگال اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا, جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھی 2 گروپوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے. حتمی نتائج 4 جون کو جاری کیے جائیں گے.